start discussing. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था नित्या? Give two types of reproduction. ओके, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका आंसर तो सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या आंसर है इसका? Sexual and Sexual asexual. and asexual. Sexual and asexual. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दैट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, है ना, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक काम करो, किसी कोई एक प्लीज मुझे ग्रुप पे इसके फोटो भेज दो क्वेश्चंस के, सर मैंने तो भेज बार बार दिया है। पूछना नहीं पड़ेगा। ओके नित्या, हाँ आ गया। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, so sexual asexual correct है। next, organisms which are produced by dash reproduction are known as clones. Asexual. Asexual is right answer, asexual is right answer, very well done। जिसने asexual लिखा है आंसर इज करेक्ट। स्टूडेंट्स कैसा होता है देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड, करेक्ट है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड, देयरफॉर वी आर एक्सपेक्टिंग recombinations of characters during synapses, राइट है ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाउ मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड स्टूडेंट्स, हाउ मेनी One. पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड? One. Only one. So is there any chance of recombinations students? Recombinations के chances हैं क्या? नहीं है chances. No. Therefore the organism which is produced, the newer organisms are exact copy of the parents. Therefore उनको clones बोलते हैं. Okay. Next question. Dash type of reproduction involves male and female gametes. Sexual. Reproduction. Sexual reproduction, that is right answer once again, है ना, simple as sexual reproduction. Sexual reproduction involves male gamete as well as female gamete. In fact, we should start from male and female gametophyte. याद आ रहा है gametophyte क्या था students? What do I mean by gametophyte? Tell me. Gametophyte मतलब क्या होता है? Plants के केस में हमने पढ़ा है ये plants के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। Male and female gametophyte means what? Gametophyte means something which will produce gamete, like in case of embryo sac. Embryo sac is female gametophyte. Pollen grain is male gametophyte, right है? याद आ रहा है आपको? Pollen grain is male gametophyte. Yes. है ना? Embryo sac is female gametophyte. Tell me an equivalent term in case of human being students. Gametophyte के लिए कौन सा term है human beings के लिए? Gametes. No. Zygote. Ovary. No. Testes. Okay. Gonads. Gonads is perfect term. Gonads is perfect term. Very well done. Gonads. Gonad. Gonad is a perfect term. ठीक है? So plants के केस में आप क्या बोलोगे? लाइन सुनो ध्यान से स्टूडेंट्स. Gametophyte will produce gametes. Okay. In case of plants, we will say gametophyte will produce gametes. Okay. In case of animals or human beings, we will say, wait, मैं क्या करता हूँ, रुक जाओ मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, सो और क्लियरेंस आ जाएगा इसके ऊपर। ये देखो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ प्लांट्स व्हाट आई विल राइट, प्लांट्स के केस में मैं क्या लिखता हूँ, मैं बोलूंगा गैमीटोफाइट will produce gamete. Gametophyte will produce gamete. This is something which I will say in case of plants. Next, let me go in case of animals or human beings. What I'll say in case of animals or human beings, हम क्या बोलेंगे students? हम बोलेंगे gonads. ठीक है, क्या बोलेंगे? Gonads. Wait, I will write gonads are going to produce gametes. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड है ना स्टूडेंट्स? अभी गैमेटोफाइट के एग्जांपल्स मुझे बता दो प्लांट्स के केस में। मेल गैमेटोफाइट का नाम बताओ मुझे, मेल गैमेटोफाइट कौन था? Pollen grain. Pollen grain is right answer. Pollen grain is right answer. Okay नित्या, pollen grain is right answer. ठीक है, नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट कौन था स्टूडेंट्स? फीमेल गैमेटोफाइट embryo sac is right answer. Well done Arshia Sheikh, very well done, that is right answer. Embryo sac. Ovule, sir? Okay, let me come to ovule. Now ovule was not the female gametophyte. ठीक है,
ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट नहीं था, ओव्यूल का हमने क्या बोला था, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, न्यूसेलस वाज द मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल था इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। देन इफ यू रिमेंबर न्यूसेलस के अंदर रहती है मेगास्पोर मदर सेल who produced megaspores, and megaspores further expanded and developed into embryo sac by mitosis. याद आ रहा है? चलो देन गोनाड्स जाते हैं स्टूडेंट्स, एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन बींग्स के केस में देखते हैं। चलो ह्यूमन बींग्स के केस में देखते हैं तो आपको और बेटर आपको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के केस में इफ यू सी, सो गोनाड्स में मेल गोनाड्स, इफ आई से मेल गोनाड्स तो आंसर वुड बी टेस्टीज, मेल गोनाड्स टेस्टीज। फीमेल गोनाड्स तो आप क्या आंसर दोगे? ओवरी, Ovary. वेरी वेल डन, ओवरीज इज द राइट आंसर, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, आपके बुक में लिख लो फटाफट से। सो मेल गोनाड्स का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर लिख लो, एंड फीमेल गोनाड्स का नाम क्या होगा, आंसर लिख लो। सिमिलरली आई विल राइट मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, एंड आई विल राइट फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। सो मेल गैमेटोफाइट का आंसर अभी आपने दिया मुझे, पोलन ग्रेन। Pollen grain. फीमेल गैमेटोफाइट का आपने आंसर दिया मुझे, Embryo sac. embryo sac. Very good. You have to always remember in this pattern कि gametophyte मतलब something which develops gametes, something which produces gametes. Okay. So same case, ये दोनों equivalent हैं, ये देखो, ये दोनों terms equivalent हैं, ऐसा लिख दो आपके बुक में, these two are equivalent terms, equivalent terms हैं. Okay. Gametes बता दो students मेरे को, gametes बता दो चलो। गैमेट्स तो वहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट हो गया था, बट इन दिस केस ह्यूमन बीइंग्स के केस में मेल गैमेट कौन होगा? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। इन केस ऑफ मेल इट वुड बी स्पर्म्स, है ना, या सिंगुलर ले तो स्पर्म। इन केस ऑफ फीमेल ओवम, ओवम इज राइट आंसर, वेरी गुड, ओवम, ओवा, प्लूरल जाते हो तो ओवा, ठीक है। एग सेल, egg cell is more often used for plants, but egg, especially सिर्फ egg, ये term use किया जाता है ovum के लिए। In case of human beings also it is used. Okay, चलो done, इतना point clear है students? Should we move ahead? Yes, sir. Okay, next question please, मुझे बताओ next question क्या है? Next question. Dash is a term used for morphological, genetical, and visual. Very good. Clone. Dash is the Clone. term. Yes, 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 that is right answer. Clone is the term which is used for morphologically and genetically identical organisms. ठीक है, morphologically मतलब क्या, दिखने में भी सेम है, and genetically मतलब क्या, जीन्स वाइज भी सेम है। ऐसा कब हो सकता है स्टूडेंट्स? एक ही केस में ऐसा हो सकता है। Asexually. मतलब आपको ऐसा एक्चुअली बोलना है कि जब अगर सेम सेम पेरेंट की तरह ही दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकली भी एकदम डुप्लीकेट, जेनेटिकली भी, तब तो सीरीज सी बात है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं है, दो पेरेंट्स तो इन्वॉल्व कंफर्म नहीं है। सो आपका आंसर कहाँ आके रुक गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आके रुक जाएगा, एंड इसका आंसर होगा क्लोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहां तक किसी को कोई इश्यू तो प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स, आपको माइक ऑन करके आप मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो। एनीबॉडी has any kind of doubt, please Sir, ask in me. gonads, what is there in female case? In case of females, okay, female gonads में you will say ovary Ovary. or ovaries, you should say ovaries. ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई डाउट है पूछ लो मुझे, न्यू कमर्स, स्पेशली न्यू कमर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट So क्वेश्चन। clones means the cloning ना? देख, क्लोन्स मतलब क्या होता है? क्लोन्स मतलब आइडेंटिकल स्पीशीज, ठीक है। क्लोन्स मतलब क्या? डुप्लीकेट। ओके, वेट वेट वेट, सूरज, वेटिंग रूम में देयर इज नोबडी, ठीक है। ये देखो मेरी बात सुनो, सूरज ग्रुप पे क्या मैसेज कर रहा है वो यहाँ पे मुझे अपडेट मत करो, ठीक है। प्रंजल, सूरज इज नॉट देयर इन द मीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, वो वेटिंग रूम में भी नहीं है,
Okay, he was there in the session without his audio joined with us. Audio join नहीं किया था उसने. So you can message him कि लिंक वापस से क्लिक करे और ज्वाइन हो जाए. अगर वो ज्वाइन होना चाहे तो आई विल अलाउ हिम विदाउट एनी डाउट. ठीक है, वो मीटिंग में ही नहीं है. मीटिंग से मैंने उसको निकाल दिया. रीजन इज उसने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया. ठीक है वैभवी, यू कैन म्यूट योर ऑडियो. ऑडियो इज ऑन. हाँ कोई बात नहीं प्रंजल, कोई बात नहीं. चलो आगे चले स्टूडेंट्स. शुड वी मूव अहेड? हाँ क्लोनिंग पूछा था अभी तन्वी ने. क्लोनिंग क्या है? सो क्लोन्स मतलब क्या तन्वी? आइडेंटिकल. सो क्लोनिंग कैसा है? वो टर्म इसलिए यूज करते हैं कि क्लोनिंग करना मतलब आइडेंटिकल चीजें पैदा करना वैसे. ठीक है, दैट इज क्लोनिंग. क्लोनिंग, प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डुप्लीकेट होता है ना. डुप्लीकेट, आइडेंटिकल डुप्लीकेट, दैट इज क्लोन. पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बोलो. Asexual reproduction is commonly seen in which organisms? तो आपने दो ऑप्शन दिया था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. सिंपल है, एकदम सिंपल आंसर इसका. क्या आंसर है स्टूडेंट्स? Unicellular. यूनिसेलुलर. सिंपल ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ढूंढना पड़ेगा जब ये क्वेश्चन आएगा तो. ओके, यू विल हैव टू सर्च फॉर दीज वर्ड्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स. ये सारे वर्ड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Give an equivalent term for asexual reproduction in plants. हाँ ये बहुत लोगों ने दिया था. मैं आपको इसका मीनिंग भी Vegetative समझाऊंगा. Yes, correct, correct. So if I use asexual reproduction in case of animals, suppose asexual reproduction का मैं equivalent देखना चाहता हूँ plants के केस में. Correct है students? Asexual reproduction. So आपने इसके बारे में सुना ही होगा, vegetative propagation. आपने कहाँ सुना होगा मैं आपको वो बताता हूँ. हमने स्कूल सेक्शन में भी इसको कवर किया है. ठीक है, और अभी आप बायोटेक्नोलॉजी में भी इसको कवर करोगे. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में आपने सुना है स्टूडेंट्स? प्लांट कल्चर में हैव यू हर्ड? प्लांट कल्चर में वी यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू गिव राइज टू सेम प्रोपोगुल्स. छोटे छोटे पीसेस हम बार बार ग्रो करते रहेंगे. दैट इज वेजिटेटिव. एंड इफ कैन एनीबडी कैन हेल्प मी कि फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, which tissue will I target? Which tissue in plants? Meristematic tissue. Any reason for that? Any reason for that? rapidly divide. It will produce same continuous device. rapidly. Because vegetative propagation क्यों हम टारगेट करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को टारगेट क्यों करेंगे? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जो डिवाइड होने की कैपेसिटी रखता है. ओनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड फर्दर. करेक्ट, इट कैन अंडरगो डिवीजन, कंटिन्यूअस डिवीजन. So it can give rise to new cells. That is as good as reproduction, mitosis, multiplication. Okay students? And आपको मैंने याद है वेजिटेटिव का एक और मीनिंग बताया था. वेजिटेटिव बोला तो क्या क्या बोलने का? वेजिटेटिव बोला तो क्या बोलने का? नरिशमेंट and vegetative and just a second students, just a second.
Sir, you are not audible. Sir is not talking. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सर आप वेजिटेटिव का कुछ तो बोल रहे थे. ओके, वेजिटेटिव का मैं ये बोल रहा था कि इट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कंसर्न्ड विथ न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन. सो जनरली इफ आई स्पीक अबाउट प्लांट स्टूडेंट्स, प्लांट के स्पेशली अपन बात करें, सो आई एम श्योर यू मस्ट बी you can easily recollect about nodes. याद आ रहा है आपको कुछ nodes? ये सब टर्म्स याद आ रहे हैं? Yeah. Bud, nodes, bud, vegetative bud. वगैरह growth हाँ, पोटैटो में जो ऐसे डॉट डॉट होते हैं, they are nothing but they are growth point, they are nodes. Potato is a stem, shoot है वो, है ना? It is a modified shoot for storage of food. So that is a node. मतलब these are all जो जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं मेरे लिए नोड्स हैं. They are all growth points. Bud, हमने बर्ड्स को भी क्लासिफाई किया था, वेजिटेटिव बड, फ्लोरल बड, राइट है, याद आ रहा है? So these are all points of propagation, growth के points. Therefore that is the most equivalent term. अभी इसमें स्टूडेंट्स, इसमें बहुत लोगों ने आंसर क्या दिया था मुझे? बहुत लोगों ने मुझे आंसर दिया था फ्रैगमेंटेशन. बहुत लोगों ने आंसर दिया फ्रैगमेंटेशन. Now fragmentation पे मैं अभी क्यों नहीं आऊंगा? Because fragmentation is a type of asexual reproduction. Fragmentation is one of the types rather than the category. समझ में आई आपको बात? Vegetative and fragmentation, lower organisms में मुझे दिखाई देता है fragmentation, जहाँ पे बॉडी से टूट के छोटा बॉडी अलग हो जाएगा, it will develop into an entire organism. Okay? Mehak, if you have सर got the answer. फ्रैगमेंटेशन एनिमल्स में ही होता है या फिर प्लांट्स में भी होता हाँ, एनिमल्स. आपने फ्रैगमेंटेशन कौन सा एग्जांपल के साथ पढ़ा है? आपने ये है? जो मैंने आपको नाम लिए, ये सब आपने कवर किया बीएसए सर के साथ? फ्रैगमेंटेशन, यस Yes. मतलब Yeah. कोरोलेशन, हाँ सर, बडिंग भी. बडिंग करेक्ट है ना? सिस्ट फॉर्मेशन होगा एंड देन जेम्यूल्स बाहर आ जाएंगे, स्पोर्स बाहर आ जाएंगे. ये सारे आपने Yes, पढ़े sir. सर. देखो, हाँ करेक्ट है, स्पोर फॉर्मेशन करेक्ट है. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपने पढ़ा है स्कूल सेक्शन में, वो सेम आपको 11th में भी था, वो सेम इस चैप्टर में भी. देयर इज नो इन डेप्थ डिस्कशन, कहीं भी इन डेप्थ डिस्कशन नहीं दिया है. ठीक है, आपको करना भी नहीं उसके बारे में, टेंशन लेना ही नहीं, जितना दिया उतना ही पढ़ के आपको आगे बढ़ जाना. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर आपने टेबल दिया था क्लास में. कैटेगराइज करना है. हाँ, यस, चलो एक एक करके टर्म बोलते जा एंड एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे कौन से सेक्शन में किसको अपन वी कैन पुट. फर्स्ट टर्म इज गैमेटोजेनेसिस. ओके, गैमेटोजेनेसिस का पहले मुझे मीनिंग बताओ. व्हाट डू आई मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? देन वी कैन प्लेस इट इन द रिस्पेक्टिव कॉलम. Development of gamete. Production of gamete. That is right. Production of gametes. हाँ, when I say genesis मतलब formation, production, that is right, है ना? सबके सब ये नोट डाउन करते रहो, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. लेटर ऑन यू कैन नोट इट डाउन इन योर बुक, अगर आपको नहीं पता है तो. अगर आपको पता है तो आई एम श्योर आपने ऑलरेडी बुक में लिख Can you दिया होगा. repeat? I'll repeat. Gametogenesis में what is the meaning of genesis? Meaning of genesis is to produce, formation. ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि it means formation. ठीक है? And gamete का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? गैमीटो क्या इंडिकेट कर रहा है? It is indicating something related to gametes. Okay? It indicates something related to gametes. So, formation of gametes or production of gametes. तो ये कब होगा? फर्टिलाइजेशन के वक्त होगा, ड्यूरिंग व्हाइल फर्टिलाइजेशन इज गोइंग ऑन तब होगा, या फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, या फर्टिलाइजेशन के भी पहले होगा? Fertilization. During Fertilization. During Yes. fertilization. Okay. Answer is before fertilization. What is fertilization, students? Define karo fertilization. When the male and The fusion of male and female gametes. Fusion of pollen grains. सेम नहीं, फ्यूजन नहीं. पोलन ग्रेन्स यहाँ पे नहीं आएंगे, पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है गैमीट. ठीक है? सो व्हेन वी से फर्टिलाइजेशन, ये देखो स्टूडेंट्स, ऊपर ये भी लिख दे तो अपना काम आसान हो जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा. फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स,
fertilization is nothing but mixing of fusion of or mixes Male and of. female gametes. Very good. Male plus female gamete. Male plus female gamete. When they fuse, it is known as fertilization. When they सर fuse, इसको it is known as एक वर्ड में सिनगेमी बोल सकते हैं क्या? मतलब एक सिनगैमी। word। तो अभी अब उसके फ्यूजन पे अपना रहे हैं। सो व्हेन आई से फर्टिलाइजेशन, तो मुझे फर्टिलाइजेशन तो आसानी से याद आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट आता है पोलन ग्रेन से, है ना, फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है। बिकॉज यू हैव नॉट डन ह्यूमन रिप्रोडक्शन अप टिल नाउ, देयरफॉर आई कैन नॉट गिव यू एग्जांपल ऑफ स्पर्म एंड ओवम बिकॉज दैट इज नॉट सो रिलेटेबल। अभी अपन ने फ्रेशली प्लांट रिप्रोडक्शन किया है, सो वी वेरी वेल रिमेंबर कि 2 out of 2 मेल गैमेट्स, याद है अपन ने क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, double fertilization. So one male gamete fuses with the egg cell, the other male gamete fuses with the secondary nuclei, है ना, secondary nucleus formed by fusion of polar nuclei. So इस fusion को मुझे बताओ, if carpels are fused, तो क्या term use किया था आपने? Syncarpus. Syncarpy. Very well done. शाबाश शीतल, well done. Syncarpus और syncarpy. मुझे बताओ, जब एंथर फ्यूज्ड हैं तो आपने क्या टर्म यूज किया था? Adelphus, like monodelphus, didelphus. Syngeny. Syngeny is the term. Syngeny is the term. Anther. महक क्या बोल रही है? मोनोडेल्फिस, डायडेल्फिस. That is for filament. याद आ रहा है? If filament is arranged in a single set, all filaments, or suppose 5 filaments are there, all 5 are arranged in a single set. Yes. It has monoadelphi, है ना? अगर हमने बोला कि खाली एंथर फ्यूज्ड है, so हमने क्या वर्ड यूज किया था? सिनजेनी. Then if carpels are fused, हमने क्या टर्म यूज किया था? सिनकार्पस. तो बार बार सिन कब बोल रहे हैं हम? SYN कब बोल रहे हैं? When there is fusion involved. So when I'm saying male and female gamete are getting fused, तो मैं इसके लिए क्या टर्म यूज करूं? Syngamy. क्या बोलूंगा? Syngamy. Is that understood? Syngamy बोल दिया मैंने. Yes. And that is nothing but fertilization. And let me introduce one more term over here. एक और term मैं introduce कर लेता हूं यहाँ पे. Amphimixis. जो आप कब पढ़ोगे? जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन करोगे तब. So वहां पे हम amphimixis भी यूज करेंगे. AMPHIMIXIS. apomixis नहीं, amphimixis. apomixis मतलब समझ में आ रहा है अपन कहाँ जा रहे हैं? apo मैंने बोला था कि apart from, you are moving away from mixes, so you are moving away from fertilization, so आप apomixis बोलोगे. amphimixis मतलब क्या? amphibian मतलब क्या? land and water साथ में. वैसे amphimixis मतलब क्या? male and female gamete का fusion साथ में, that is amphimixis. समझा? amphimixis, fertilization, syngamy. सब सेम हो गए, सब इक्विवेलेंट हो गए. ओके, सो गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स. हाँ, अब बताओ मुझे कि इसको अपन कहाँ रखेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन? Pre-fertilization. प्री होगा, सब अग्री कर रहे हैं? कोई ऐसा है जिसको जो अग्री नहीं कर रहा है कि नहीं ये तो प्री नहीं, ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं है सर? ऐसा कोई है? हाँ, मैं. हाँ, ओके सेजल, ठीक है. सो व्हेन सेजल बोलती है कि गैमेटोजेनेसिस मतलब आई वुड लाइक टू प्लेस इट अंडर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है सेजल? मेल प्लस फीमेल गैमेट का फ्यूजन, दैट इज फर्टिलाइजेशन. समझा? Yes. दैट मींस इफ यू आर ट्राइंग टू प्लेस इट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दैट मींस फर्टिलाइजेशन में ही गैमेट बनता है और वो फ्यूज हो जाते हैं दोनों. ऐसा तो नहीं ना? गैमेट तो पहले बनता है ना फर्टिलाइजेशन के, राइट है ना? मेल गैमेट कहाँ बन जाता है? फर्टिलाइजेशन के भी पहले बन जाता है, रेडी हो जाता है. देन पोलन आके बैठेगा, देन गैमेट रिलीज करेगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा. सो इट हैज टू बी प्री फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Gamete transfer. Gamete transfer. गैमेट ट्रांसफर. ओके, गैमेट ट्रांसफर
कहाँ पे हम प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स? गैमीट ट्रांसफर मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे पोलिनेशन आ गया आपका, यू आर ट्रांसफरिंग द During गैमीट। fertilization. इट इज प्री, इट इज प्री, फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। ड्यूरिंग मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन के दौरान हो रहा है क्या ये? इज इट हैपनिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? नो, इट फर्स्ट इट विल हैपन, फर्स्ट पोलन ग्रेन्स अपन ट्रांसफर करेंगे, फर्स्ट हम गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, गैमीट्स को ले जाके वहां पे रख देंगे, अब वी कैन एक्सपेक्ट फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, बाप रे, अपन कहाँ चले गए? डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट बताओ स्टूडेंट्स, कहाँ आएगा? The second option will come in what? Post fertilization. Post fertilization, not at all possible. First tell me the meaning of Pre gametophyte. fertilization. Tell me the meaning of Production नहीं, of gametes. हाँ, Who tell me the produce meaning of gamete? gametophyte is something which produces gametes. गैमेटोफाइट के अंदर गैमीट बनते हैं ना, पोलन ग्रेन खुद, पोलन ग्रेन इज अ गैमेटोफाइट, अभी अभी आपने लिखा, राइट है ना? एम्ब्रियो सैक इज अ गैमेटोफाइट। Yes. एम्ब्रियो सैक के अंदर गैमीट बनता है, गैमेटोफाइट के अंदर गैमीट बनता है। सो अगर गैमेटोजेनेसिस को आपने प्री रखा, तो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट कहां से पोस्ट हो जाएगा? वो तो उसके भी पहले होना पड़ेगा ना। पहले डेवलपमेंट होगा, देन गैमीट बनेगा, देन गैमीट ट्रांसफर होगा, देन गैमीट का फ्यूजन होगा, अब हुआ फर्टिलाइजेशन, राइट है ना? किसी को एनी Yes, कंफ्यूजन? रूबी, रूबी का Yes, sir. क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, रुक जा रूबी। गैमेट ट्रांसफर विल कम प्री फर्टिलाइजेशन, यस यस रूबी करेक्ट है, प्री फर्टिलाइजेशन में ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट, सबको क्लियर है? अवनीश, Yes. अवनीश समझ Yes, में आ sir. रहा है? यस सर। हाँ, तो वेरी गुड। मतलब जो भी गैमेट के रिलेटेड है, डेवलपमेंट, जेनेसिस और ट्रांसफर, वो सब प्री में आएगा। हाँ, ये देख, नहीं नहीं सेजल, तुझे वो सिंपल सा वो फ्लो चार्ट समझना है सेजल। फ्लो चार्ट क्या समझना है सेजल को, कि ये देख, ये था पहले एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के ऊपर स्टेमिन, उसके ऊपर फिलामेंट, उसके ऊपर एंथर, एंथर के अंदर डेवलप होता है पहले पोलन ग्रेन। ये तो तूने पढ़ रखा है ना ऑलरेडी, पोलन ग्रेन का ही दूसरा नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। तो पहले तो इसका डेवलपमेंट होगा, अगर ये डेवलप होता है तब जाके ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट। समझ में आया? मेल गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद इसका ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे, देन ट्रांसफर होने के बाद कहीं पे होगा फर्टिलाइजेशन, राइट है? तो ये देख, कहाँ पे है फर्टिलाइजेशन एंड कहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, चेक कर सेजल। समझ में आई बात? हाँ, तो मतलब प्री में है ना। ऑब्वियसली प्री में। तुझे ये सीक्वेंस समझना पड़ेगा, और ये सीक्वेंस आई होप अब तक समझ गया होगा तुझे। लास्ट चैप्टर अपना इसके ऊपर ही था, अगर ये क्लियर नहीं है तो तुझे आंसर नहीं आ सकता। ठीक है अदनान, व्हाट अबाउट यू? अदनान है सेशन में? सर समझ रहे समझ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है, आज पार्टी देना पड़ेगा तेरे को, सब समझ में आ रहा है। श्योर सर श्योर। और 10th वाला परसेंटेज वाला कितना था परसेंटेज? 84.40 सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा टर्म था? किसी को कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन हेल्प यू। अब तक कोई ऐसा टर्म है जो आपको नहीं समझ में आया, आप कंफ्यूज हो रहे हो? इट इज वेरी नॉर्मल, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, बहुत नॉर्मल है। आप मुझे बोलते चलो कि सर ये गैमेटोफाइट कहाँ गया, अचानक से कहाँ से आ गया, ये टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, तो मैं आपको वापस अभी बता दूंगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी अभी चैप्टर बहुत फ्रेश है आपके दिमाग में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यू माइट गेट सर कंफ्यूज्ड विद सर्टेन। फर्टिलाइजेशन के आपने 2 टाइप्स बताए थे, वो प्लीज दोबारा बता दीजिए ना। फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स बताए थे, ओके ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स नहीं है, बट वी से कि प्लांट्स के केस में वी यूज दिस टर्म डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? प्लांट्स के केस में वी यूज दिस टर्म, एंजियोस्पर्म्स के केस में स्पेशली वी यूज दिस टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? नाउ pollen grains which is male gametophyte, pollen grain which is male gametophyte will produce 2 male gametes। नहीं सर, ये नहीं सर। सर आपने जब फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन बताया था उसके बाद 1-2 टर्म बताया था। अच्छा, सिनगैमी एम्फेमिक्सिस। हाँ सर।
ओके दोनों का मतलब सेम होता है, सिनगैमी, एम्फिमिक्सिस, फर्टिलाइजेशन, तीनों सेम टर्म, मीनिंग सेम, सॉरी तीनों डिफरेंट टर्म्स बट द सेम मीनिंग, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है ओके सर। ओके चलो वापस से एक बार ज्वाइन कर लो सेशन, वापस ज्वाइन कर लो, सूरज भी आ जाएगा, बहुत देर से वो कॉल पे कॉल कर रहा है मुझे। नहीं अदिति गैमीटोजेनेसिस इज नॉट डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट, रॉन्ग। ये देख अदिति, ये देख ऐसा होता है, फर्स्ट इट इज डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट, इसके लिए कोई अलग से टर्म नहीं है, ठीक है। गैमीटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए देयर इज नो सिंगल टर्म, development of gametophyte, okay, development of gametophyte, and then comes development of gamete या formation of gamete, समझ में आया, formation of gamete। नाउ इसके लिए एक टर्म जरूर है, क्या है वो टर्म, गैमीट, रुक जाते हैं, चल गैमीट बोल के रुक जा, ओजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, समझ में आया, गैमीटोजेनेसिस। Sir, Okay, the clear है? terms are confusing, so that's why. हाँ, terms are surely confusing, no doubt about it. Terms are confusing, but that is why I said कि you will have to revise your reproducing flowering plants very properly. अगर आपने वहां पे रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने वहां पे रिवीजन नहीं किया है तो आपको श्योरली चैप्टर 1 भी ऑप्शन में रखना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऑप्शन में रखना पड़ेगा, चैप्टर 1 बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है चलो वापस ज्वाइन हो जाओ, फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं, और अदनान का एक रिक्वेस्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। इट इज वेरी सिली बट नो प्रॉब्लम, अपन ले लेते हैं रिक्वेस्ट। आ जाओ।